Hello students, how are you all? Once again I welcome you all in this accountancy class, and you all know that we are going through the chapter number 3 and chapter name is admission of a partner. And you all know that in this chapter I have covered 3 videos till now, and in that 3 videos I have covered the topic that is related to calculation of new ratio at the time of admission of a partner, as well as sacrificing ratio of the old partners when new partner admits in the partnership business. So in this chapter today we are going to start one more important topic, that is accounting treatment of goodwill. At the time of reconstitution of partnership firm, goodwill will be valued and goodwill will be recorded in the books of accounting. So first of all, let me clear the reconstitution situations of reconstitution, which I have already told you that when existing partner change their profit sharing ratio, it is the situation of reconstitution of partnership. And when new partner will admit in the partnership business, again it will be the situation of reconstitution of partnership business. If among all the existing partner, any existing partner is going to retire from the partnership business, then at the time of retirement it will be the situation of reconstitution of partnership firm. At the time of death of any partner, it will be reconstitution of partnership firm. Means in all these situations goodwill will be valued and treatment of goodwill will be done in the partnership business. So in this chapter, means at the time of admission of partner, once again goodwill will be valued like previous chapter. In previous chapter it was the chapter of reconstitution of partnership firm, means when existing partner change their profit sharing ratio themselves. In that chapter also we had seen that goodwill was valued and it was treated in the accounting book. ठीक है, उसके लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, जर्नल एंट्री क्या पास करते थे, कैसे पास करते थे, वो लास्ट चैप्टर में हमने देखा. इन दिस चैप्टर आल्सो, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, once again let me revise the things. What is goodwill? ठीक है, what is goodwill? So goodwill, you all know that it is the reputation of business. Means goodwill you can say in easy term, you can define that it is the brand value in the minds of the customer for a particular business. यानी किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए सोसाइटी में या कस्टमर्स के माइंड में उस बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, या उस बिजनेस की जो अच्छी रेपुटेशन है उसी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है, गुडविल बोलते हैं. ठीक है, गुडविल. तो ये क्लियर है कि जिस बिजनेस की जितनी अच्छी इमेज होगी सोसाइटी में, या जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन या वो इमेज सोसाइटी में या कस्टमर के माइंड में अच्छी होगी, वो सारे कस्टमर या वो सारी सोसाइटी उस पर्टिकुलर बिजनेस का सामान परचेज करेंगे. यानी अगर ब्रांड इमेज अच्छी होगी तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस की सेलिंग भी ज्यादा होगी, और वहां पे जिस बिजनेस की सेलिंग ज्यादा होगी ऑब्वियसली प्रॉफिट वहां पे ज्यादा होगा. तो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट गुडविल इज अर्निंग कैपेसिटी फॉर द बिजनेस. ठीक है, गुडविल क्या है, अर्निंग कैपेसिटी है. और कोई भी किसी भी बिजनेस की गुडविल या किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बन सकती है कस्टमर के माइंड में या सोसाइटी के माइंड में, ऑब्वियसली इफ ही विल बी सर्विंग फॉर देयर कस्टमर. मीन्स if the businessman will sell the quality product at reasonable price, and if businessman will satisfy the needs and wants of the customer, then they can create a good reputation in the customer's mind. तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस को अपनी गुडविल या अपनी ब्रांड वैल्यू सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो इसी तरीके से भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर मिल करके बिजनेस करते हैं तो वो भी अपनी मेहनत से कुछ टाइम के बाद क्या है, अपने बिजनेस की या अपने फर्म की एक गुडविल क्रिएट कर लेते हैं. ठीक, अब ध्यान से सुनना, इस चीज को चैप्टर पे मैं रिलेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो जो भी पार्टनर्स मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं वो सारे लोग मेहनत करके क्या करते हैं, गुडविल यानी किसी बिजनेस की या अपने फर्म की एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर देते हैं. ठीक, एक अच्छी रेपुटेशन जब क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और जब पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूअस एक प्रॉफिट होने लगता है, ट्रेंड बन जाता है प्रॉफिट का, उस केस में अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेना चाहे, ठीक है, उस केस में अगर न्यू पार्टनर कोई एडमिशन लेना चाहे तो एडमिशन लेते टाइम ओल्ड पार्टनर्स जो भी होंगे, जो कि अभी तक मेहनत कर चुके हैं सारे पार्टनर्स, तो वो पार्टनर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ठीक है
आप पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है हम आपको अलाउ करेंगे, तो आप पार्टनरशिप बिजनेस में क्या देंगे? तो बोलेगा ऑब्वियसली आई विल कंट्रीब्यूट कैपिटल लाइक यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने भी बिजनेस में जब पार्टनरशिप ज्वाइन की होगी तो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, सारे पार्टनर कैपिटल देके आते हैं बिजनेस में। तो एज ए न्यू पार्टनर आई विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो उस केस में बोलेंगे, वो जो सारे ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे कि कैपिटल तो हमने भी दिया, कैपिटल तुम भी दे रहे हो, लेकिन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था वो रिस्की पीरियड था, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल नए बिजनेस की कोई गुडविल नहीं होती, कोई रेपुटेशन नहीं होती। तो वो बोलेंगे कि वी आर वर्किंग हार्ड फॉर अवर पार्टनरशिप बिजनेस एंड आफ्टर पुटिंग अवर हार्ड वर्क वी हैव क्रिएटेड अ ब्रांड ऑफ अवर बिजनेस इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है ना, हमने मेहनत किया तो जिसकी वजह से कस्टमर के माइंड में हमारी एक गुडविल बन गई। अगर तुम पार्टनरशिप बिजनेस में आओगे तो उस हमारी मेहनत की गुडविल का बेनिफिट तुमको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, गुडविल इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर अच्छी रेपुटेशन हम सारे पार्टनर ने मिल करके बिजनेस के लिए बनाई है तो इसका मतलब कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और उस मेहनत के ब्याज पे प्रॉफिट ज्यादा होगा तो पार्टनरशिप में तुम भी आओगे तो प्रॉफिट तुम्हें भी मिलेगा, बिना कुछ किए तुम्हें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बोलेंगे नए पार्टनर से बोलेंगे कि ठीक है पार्टनरशिप बिजनेस में तुम कैपिटल लेकर के आओ, बट ये है कि कैपिटल के एक्स्ट्रा में तुमको कुछ कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तुमको कुछ कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज दैट, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, if there are two partners and their PSR that is 3:2, okay, C is coming in the business and he is getting 1/4 share, 1/4 share from B। ठीक है, B से 1/4 शेयर पा रहा है वो। Suppose in that case, if firm is getting profit of rupees 20,000, then in that case A will get profit means 20,000। रेशियो क्या है, 5 से डिवाइड कर देंगे 4,000, तो 4 चीज 12,000 will get by will be getting by A, and 4 to the 8, 8,000 rupees will be given to B in the form of profits। But when C will be entering in the partnership business, now A will not get 12,000 and B will not get 8,000 if firm will get 20,000 rupees as profit। क्यों? क्योंकि अब ये C आ रहा है तो C को भी 1/4 का पार्टनर बना है, तो C को भी 1/4 इसमें से मिलेगा। उसके बाद किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होगा? मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर जिस भी ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर गेन करेगा उस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 1/4 फ्रॉम बी से ही सारा कुछ लिया है। तो इसका मतलब कि अब आगे आने के बाद, यानी सी के आने के बाद बी विल नॉट गेट 8,000 रुपीज फ्रॉम दिस 20,000 प्रॉफिट। ये क्लियर है? तो 8,000 इसको नहीं मिलेगा तो कम मिलेगा, तो इसका मतलब कि सी के आने की वजह से बी को क्या है, लॉस हो रहा है। तो बी बोलेगा कि मुझे उसका कंपनसेशन तुम्हें देना पड़ेगा। कैपिटल लाओगे तो वो तो फर्म की कैपिटल होगी, वो तो सारे लोग मिलकर के उससे बिजनेस करेंगे। मैंने तुम्हारे फेवर में सेक्रीफाइस किया है, बी बोल रहा है मैंने तुम्हारे फेवर में सेक्रीफाइस किया, मेरे प्रॉफिट छोड़ने की वजह से तुमको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, कंपनसेशन अमाउंट चाहिए। तो वही कंपनसेशन अमाउंट हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर इट इज टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के फॉर्म में सी यानी कैपिटल जितना देगा, कैपिटल के अपार्ट फ्रॉम कैपिटल सम एडिशनल अमाउंट विल बी ब्रॉट बाय सी, और वो एडिशनल जो अमाउंट लाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड इट विल बी गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी जिसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया होगा ये पैसा सिर्फ उसी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। अगर दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो दोनों पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है उस केस में ए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कम सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ए को ज्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा। मतलब जो जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर का जो आएगा वो उसी प्रोपोर्शन में बटेगा, यानी जो ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा कंपनसेशन, और जो कम सेक्रीफाइस करेगा न्यू पार्टनर के फेवर में उसे कम पैसा मिलेगा। इसीलिए अब मैंने बताया था लास्ट वीडियो मैंने करते टाइम बताया था कि इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू दैट व्हाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो आप समझ में आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने क्यों कैलकुलेट किया।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत इसीलिए होती है ताकि हमें ये पता लगे कि न्यू पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा उस पैसे को किस रेशियो में या किस पार्टनर को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता रहेगा, जैसे मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है कि 2:1, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अगर मान लो ये 5,000 रुपीज लेकर के आता है या इसी तरीके से कहें 6,000 रुपीज लेकर के आता है, तो 6,000 में 4,000 ए को मिल जाएगा और 2,000 किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब फॉर ट्रीटिंग गुडविल अमाउंट और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो नीड टू बी कैलकुलेटेड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का या बुक में रिकॉर्ड करने का मेथड कितने हैं। तो नाउ यू विल सी दैट there will be two cases when new partner bring his share of goodwill or premium for goodwill in cash. First condition is when new partner bring his share of goodwill cash, and second condition when new partner does not bring his share of goodwill in cash. ठीक है, यहाँ पे brings है या does not brings in cash means there will be two situations at the time of admission of partner. New partner can give capital amount in cash as well as premium for goodwill amount in cash. Means at the time of taking admission in business, he will bring cash for his share of goodwill. ठीक है ना, for distribution to the sacrificing partners. But sometimes new partner will be unable to pay its share of goodwill in cash. ठीक है ना, अपनी जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगी वो बोलेगा कैपिटल तो मैं दे दूंगा बट मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जो होगा वो मैं कैश में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कैश में नहीं देगा तो क्या माना जाएगा, उसको उतने अमाउंट से डेटर मान लिया जाएगा कि ठीक है तुम आज पैसा नहीं दे पा रहे बट फ्यूचर में तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, मतलब उसका अकाउंट नेगेटिव दिखाना पड़ेगा और वो क्या करेगा, वो फ्यूचर में ले आकर के उसको मीट करेगा। लेकिन चाहे वो न्यू पार्टनर कैश में गुडविल का पैसा लाए या न लाए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसकी शेयर ऑफ गुडविल का पैसा तुरंत मिलेगा। अब हिज शेयर ऑफ गुडविल का क्या मतलब है, हिज शेयर ऑफ गुडविल का क्या मतलब है, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल का मतलब कि फर्म की गुडविल, जो कि सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड। फर्म्स गुडविल, हाउ फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड, तो देयर आर थ्री मेथड्स वी हैव स्टडीड दैट टॉपिक, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा या गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया होगा। ज्यादातर एडमिशन के क्वेश्चन में क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया होता है। तो फर्म की गुडविल मान लो सपोज दैट दिया है 50,000 या सपोज 60,000। ठीक है, उस केस में मान लो ये बन रहा है 1/4 शेयर का पार्टनर बन रहा है, मतलब जो सी है, जो न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना है 1/4। तो हम कैसे निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल। ये तो पूरे फर्म की गुडविल है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये सी आएगा तो पूरे फर्म का प्रॉफिट इसी को मिलेगा, नहीं, ये तो सिर्फ अपने प्रॉफिट शेयरिंग तक ही प्रॉफिट पाएगा ना। तो कहेगा कि जितना मैं प्रॉफिट पाऊंगा उतने के ही बराबर मैं क्या करूंगा, कंपनसेशन अमाउंट पे करूंगा। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है तो उसमें पूरे फर्म की गुडविल यानी पूरे फर्म की रेपुटेशन का बेनिफिट अकेले सी को नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 1/4 पार्ट तक ही मिलेगा। यानी इस रेपुटेशन से गुडविल चाहे बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो जाए उसका 1/4 ही इसको मिलेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, फर्म की गुडविल जितनी भी होगी उसका 1/4 ही सी लेकर के आएगा। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, इसी 60,000 यानी फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाई सी का जो शेयर बनेगा 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15,000। ये 15,000 सी को लाना पड़ेगा, किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। और ये 15,000 किसको मिलेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। याद रखना, किसको मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो एक को, सारे पार्टनर करेंगे तो सारे पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब देखो, सबसे पहली चीज मैं इस पहले केस को लेकर के चल रहा हूँ कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जब कैश में पैसा लेकर के आए। अब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना, जर्नल एंट्री कैसे होती है। सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, जब कैपिटल का पैसा लाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? फॉर्म में पैसा आ रहा है तो कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल का पैसा ला रहा है तो फर्म में पैसा आ रहा है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितना पैसा लाएगा उतने से क्या हो गया, वो उतने से उसकी कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल में पैसा आ रहा है तो कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है न्यू पार्टनर्स के। अब मान लो सी कैपिटल आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मैंने बताया प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, अगर वो पैसा लाएगा उसके लिए तो अगेन उसके लिए कैश लेकर के आएगा, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किसका पैसा है ये? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ये दो एंट्री तो हो जाएगी। अब ध्यान से हम देखेंगे तो इसकी कंबाइंड एंट्री की जा सकती है, यानी जब व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो उसके लिए हम कंबाइंड एंट्री क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, सपोज कोई पार्टनर 2 लाख की कैपिटल और 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। ठीक है, और कैश के सामने पूरा कितना, 2,10,000 जितना टोटल लेकर के आएगा। इसके बाद क्या होगा, जस्ट इसके बाद क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बिजनेस में आ गया, तुरंत इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आया था तो क्रेडिट हुआ था, जब खत्म करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अभी मैंने एग्जांपल लिया था ए एंड बी। इफ टू पार्टनर्स वेयर डूइंग बिजनेस, सी इज कमिंग इन द बिजनेस, और उस केस में हो सकता है ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो पार्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा उसी फॉर्म में, जैसे मैंने बताया प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 ला रहा है, 10,000 उसी फॉर्म में उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ये हमारा ट्रीटमेंट होता है। बट समटाइम्स इट विल आल्सो गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन दैट sacrificing partner withdrew the premium for goodwill amount from the partnership business। यानी सपोज ए और बी को कुछ पैसा अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का मिला होगा, तो उसका सारा पैसा या उसका हाफ क्या करते हैं, वो पार्टनरशिप बिजनेस से निकाल देते हैं। जब पार्टनरशिप बिजनेस से वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ये पार्टनर जिनको मिल चुका है, ठीक है ना, इनका कैपिटल क्रेडिट किया, मतलब इनकी कैपिटल में ऐड कर दिया गया, इनको मिल गया। अब ये पैसा निकालेंगे, कभी कभी निकालते हैं, ठीक है, withdrew premium amount
प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। जब विड्रॉ करेंगे तो सीधे सीधे एंट्री क्या होगी, ये इनका कैपिटल अकाउंट कम होगा, बढ़ रहा था जब इनको दिया गया तो बढ़ रहा था, क्रेडिट हुआ था। अब इनकी कैपिटल में से पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उसी में से निकाल के पैसा ले जा रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लेकर के जा रहे हैं, टू कैश और बैंक, यानी पार्टनरशिप बिजनेस से कैश और बैंक चला गया, टू कैश और बैंक। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट होता है, ऐसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि बुक का क्वेश्चन कैसे होता है, या एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:7. C admitted as new partner. C admitted as new partner. Okay. Then after his admission, new ratio was 2:3. ये 3:4:3. ठीक है, फर्म्स गुडविल was rupees 50,000. ठीक है, C brings rupees 1,50,000 C brings 1,50,000 as capital and necessary amount for goodwill in cash. समझ में आ गया? A and B are two partners. Their profit sharing ratio was 3:7. ठीक है, C एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, उसके एडमिशन के बाद का नया रेशियो डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया 3:4:3. कह रहा है फर्म्स गुडविल वाज 50,000, क्योंकि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैल्यूड करके दिया हुआ है 50,000. नहीं दिया होता तो हमें इन्फॉर्मेशन देता और मेथड जिस मेथड से बोलता हम निकाल लेते. यहाँ पे फर्म की गुडविल 50,000 दिया है. कह रहा है सी ब्रिंग्स 1,50,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश. सी आएगा तो कैपिटल लाना पड़ेगा, कितना कैपिटल 1,50,000, और कह रहा है नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल. गुडविल कितना लाएगा वो चीज दिया नहीं है, बट हमें फर्म की गुडविल तो दिया है ना. फर्म की गुडविल से सी की शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे. यहाँ लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल. फर्म की टोटल गुडविल दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाई, अब सी का रेशियो कितना बन रहा है, ये न्यू रेशियो में देखो 3, और ये टोटल करेंगे 3, 4, 7, 3, 10, तो 3/10. कितना पार्टनर बन रहा है, 3/10. ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा कितना हो गया 15,000. ठीक है, 15,000 ये सी की शेयर ऑफ गुडविल है. अब 15,000 किसको देंगे, ठीक है,
अब यहाँ पढ़ने ये क्वेश्चन देखने से पता नहीं लग रहा है ना कि ए ने सेक्रीफाइस किया या बी ने सेक्रीफाइस किया, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, निकालेंगे एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है? क्योंकि 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना। एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे देखेंगे ए का रेशियो क्या, फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड 3/10 माइनस 3/10। ठीक है, इसमें भी देखो ओल्ड माइनस न्यू, इसमें भी 3/10, इसमें भी 3/10, तो ये क्या हो गया? 0/10। यानी ए ने सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बी का क्या है? बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, इसमें कितना था? 7/10 में से कितना हो गया? अब ये 4/10। ठीक है, नीचे इक्वल है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? 7 में से 4 गया तो हमारा 3/10। यानी कि ये समझ में आया कि 3/10 तो सी का रेशियो था, तो सी ने सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे लिया? बी से लिया था। जो 3/10 यानी इसका 0 है, तो मतलब इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, सारा सेक्रीफाइस इसने किया, इसलिए सारा पैसा किसको मिल जाएगा? इसको मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सी आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितना ला रहा है? 1,50,000। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में ला रहा है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हमने निकाला? 15,000। तो 1,50,000 प्लस 15,000 तो कितना हो गया? 1,65,000 रुपीज टोटल कैश बिजनेस में आ गया। ठीक है, जैसे ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया, बटेगा ये एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा? सिर्फ इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, 0/10 इसका आएगा, तो सारा पैसा बी को मिलेगा। 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक ना, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करेंट अकाउंट में जाएगा, 20 करेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब पूरा 15,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये बोलता है, अगर मान लो ये बोलता है कि बी विड्रू 50% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, बी 50% निकाल ले रहा है, तो एंट्री क्या होगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 7,500। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनता है। अब सपोज दैट, मान लो कि ये क्वेश्चन हम थोड़ा देर के लिए हटा करके ये देखें कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसी एक पार्टनर का आता है 3/5 और एक पार्टनर का आता है 2/8, ये कंडीशन बन सकती है। कभी हम निकालेंगे न्यू ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर करेंगे, या सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो उस केस में ये सेक्रीफाइसिंग, एक का सेक्रीफाइसिंग इतना आएगा, 2 का सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के इक्वल करेंगे 3/5 और 2/8, तो ये हमारा 24 और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कट करके कितना हो जाएगा? 12:5। ठीक है, अब 12:5 से छोटा नहीं हो सकता, ये हमारा रेशियो हो गया। तो अब उसके बाद अगर 12:5 आता तो हम 15,000 को इसी रेशियो में बांटते। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12/17 वो बी एक हो जाता, और 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5/17 करते वो बी हो जाता। ए और बी दोनों को देते, और उसमें से अगर वो पैसा निकालते तो तीसरी एंट्री करते, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हर क्वेश्चन में देखना कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कभी कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल के दे देगा, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है ना, ए एंड बी देयर वर 2 पार्टनर्स, ध्यान से सुनोगे, 3:2, ठीक है ना। सी कमिंग इन द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर एंड ही टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोल रहा है? सी टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जब बोल दिया कि इक्वली ले रहा है तो मतलब क्या है? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग क्या हो गया? 1:1, यानी दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब कि दोनों ने सेक्रीफाइस किया। सी का जो भी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या करेगा?
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि डायरेक्टली सी का शेयर ऑफ गुडविल दिया होगा, जैसे यहाँ पे बोल सकता था कि सी ब्रिंग्स 1,50,000 एज कैपिटल एंड ₹10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आ रहा है, तो फिर डायरेक्टली वो 10,000 हमारी उसकी शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके दिया होगा, तो हम डायरेक्टली उसी को काट देंगे। लेकिन यहाँ पे फर्म की गुडविल दिया था, तो इसलिए हमने उसकी शेयर ऑफ गुडविल निकाला था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।